Just 1 or 2 months. Yeah. Okay. So good afternoon, everyone. Good afternoon, our coordinator, sir, Dr. Amolendu Samanto. This is the second batch of the certificate course on entrepreneurship development, business accounting, and tax management. Today we have Madam Sangita Sen. She is the CEO and the founder of Sunny Day Solution. Apart from this, she is a qualified electrical engineer with the experience of 15 years, 15 long years in the field of electronic, and she has performed different assignment as the service engineer, deputy manager, and as well as the plant inspector in different industries. And I have already mentioned that she is the CEO and founder of the Sunny Ray Sunny Day Solution. So she is the successful women entrepreneur of West Bengal, one of the, and apart from this, she is the virtual training program on entrepreneurship 2020. Entrepreneurship Development Institute of Ahmedabad gives her the international entrepreneurship trainer status, and she is also carrying a license from government of in West Bengal as a chief electrical inspector in the government of West Bengal. So apart from this, she has acted as a resource person in different faculty development program and different training workshop, etc. And our organization also organized different workshops and training for the budding entrepreneurs. And because of our achievements, he has awarded with many awards. I mentioned the two most important awards: that the international award by the Kramer Graduate School of Business at Rollins College and the US Department Global Links Outstanding Women Entrepreneur 2019, and awarded by KTV Kolkata Ami Tomay Bhalobasi Government Registered Social Welfare Organization registered under the Government of India Niti Aayog for Inspirational Women Entrepreneur Honor 2020. And I also know her very well because I also part of the Global Links and she is also part of Global Links. So and from that I requested her. So, and she accepted our proposal. So now she is here to share her experience as an entrepreneur and also touch all the problems that she has faced and the other facing. So now over to you, ma'am. And if Dr. Amolendu Samanto wants to say something, please say. Yeah. Meanwhile, again I am welcoming Ms. Sangita Sen, our resource person of today's class. Thank you very much, ma'am, for kindly consenting to act as resource person in this program. And ma'am will share her experience about the journey to start and launch a business and how to grow a business and how to enrich yourself in this career. And here I would like to say our students that it is a very good opportunity for all of you to learn from a direct entrepreneur who not only theoretically studied commerce but practically applied it and got success. So you also please feel free to ask all your queries regarding how to become a successful entrepreneur and what are the difficulties ma'am faced in her journey and how you can tackle those problems in your personal programs. So I request all of you to be free and frank in discussion, and you please ask questions to ma'am whenever you have any doubt. And I also request ma'am to continue. Now it is over to you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Shantanu, sir. Thank you, Natal. Thank you. Actually, the students from where business management. So I am not a business management student. I am a technical student and shifted my career in entrepreneurship after my 14 years journey. We have shared some journey routes and entrepreneurship journey from मैंने जो हुआ है वो हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ. So at the first, it is your accountancy or it's not direct ground of mine, but ये अभी हमको देखना पड़ता है.
क्योंकि हम ऑन्टरप्रेनर है ना, ऑन्टरप्रेनर को पिन से लेके आलपिन से लेके एलिफेंट तक सबको सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हम ऑन्टरप्रेनर है। तो लेट वी स्टार्ट। माय colleague Arnob will help to us for the showing our PPT. So sir, can you give the permission to show the PPT? Shantanu sir, can I get we get the permission for the showing PPT? Yes, yes, you can share, please. Okay, okay, okay. Thank you, sir. ओके, एज पर सर जो भी क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा वो आप करते जाइए, क्योंकि अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो एज ए एंटरप्रेन्योर हम जो भी है फेस किए हैं बता देंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है वो आता है तो जितना तक मुझे जानकारी है वो हम क्लियर करने के लिए कोशिश करेंगे। लेट वी स्टार्ट ऑन ऑफ द अच्छा, इट इज द फर्स्ट टॉपिक इज एंटरप्रेन्योरशिप। अगर कोई आपको बताता है एंटरप्रेन्योरशिप है और आर यू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरशिप, और कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहा है, तो व्हिच वर्ड इज कम इन योर माइंड फर्स्ट? हम जितने भी यहाँ पे है हम लोगों को फर्स्ट कौन सा वर्ड आता है? वी यूज आवर चैट बॉक्स एंड राइट डाउन दैट व्हिच वर्ड आफ्टर seeing that language entrepreneurship or hearing that, which word will come in our mind at first? कौन सा वर्ड पहले आता है हमारे दिमाग में? We can use our chat box. आप आपके चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ये ऑडियो ऑन कर हमको बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इंटरेक्टिंग सेशन रहेगा। बिजनेस ओके विशाल सर, थैंक यू। बिजनेस प्रोसेस ओके, एनीवन? एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस स्टार्टिंग में एक वर्ड आया है आपके सामने, तो इसको लेके एंटरप्रेन्योर ओके नहीं, एक एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? माने ये वर्ड आते ही दिमाग में कौन सा बत्ती पहले टंग कर जलती है? दिमाग की बत्ती कौन सा जलाता है? क्या चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? जैसे विशाल सर ने बोला है कि बिजनेस प्रपोजल चाहिए, ओके एंटरप्रेन्योर तो चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को ही तो एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाना है। which first word will come in your mind after the seeing the word entrepreneurship? क्या चाहिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए? कैपिटल, ओ मनी, फाइन, थैंक यू। कैपिटल, हाँ कैपिटल। विशाल सर और नंदिनी मैम ने वैसे रिप्लाई कर दिया है कि कैपिटल चाहिए। और किसी को कुछ नहीं चाहिए? सर दोनों दो एक सर एक मैम को कैपिटल चाहिए, और किसी को कुछ नहीं चाहिए ना? एक्चुअल लंच टाइम है ना, ये 1 बजे का टाइम बहुत बुरा रहता है कि लंच करने के बाद आते हैं तो गुड आफ्टरनून है, गुड आफ्टरनून के बाद कुछ रिलैक्सेशन का टाइम है, तो यहाँ पे आकर ये बोलकर चल माने ये इंटरेक्शन नहीं होगा तो बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए कैपिटल पकड़ कर चलते हैं। मनी, न्यू आइडिया एंड इनोवेशन, थैंक यू विशाल सर, वेरी एक्टिव पर्सन है। शायद लंच अभी तक किए नहीं, आफ्टर सेशन लंच करने वाले हैं, तो ये शी इज वेरी एक्टिव पर्सन, थैंक यू विशाल सर। हाँ देखिए, मानी तो चाहिए, सबको कैपिटल चाहिए, लेकिन अगर कोई आपको अभी बोलता है कि चलिए आई गिव यू द 1 लाख रुपीज, someone, your father, your mother or your any co-relative say you, चलो हम आपको 1 लाख रुपया अभी दे देते हैं, then which business you start from the tomorrow morning? तो बिजनेस आइडिया एक बात आया था अभी भी यहाँ पे चैट बॉक्स में कि बिजनेस आइडिया चाहिए। हाँ, पहले आपका बिजनेस आइडिया चाहिए। कौन सा आइडिया? व्हिच आइडिया विल स्टार्ट फॉर दैट? आइडिया के बाद चाहिए एक प्रपोजल, एक मार्केट सर्वे भी चाहिए उसके साथ। ये मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता है, लेकिन हम जोड़ रहे हैं, करी को जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप मैनेजमेंट का स्टूडेंट है तो आपको ज्यादा पता है हमारे से ज्यादा। तो इसको करी को जोड़ते जाते हैं हम लोग कि पकड़ कर चलते कि आइडिया चाहिए, उसके बाद आपको मनी चाहिए, उसके बाद एक प्रॉपर डायग्राम चाहिए कहाँ पे आपको जाना है, एम कहाँ तक ले जाना है, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद चाहिए अच्छा एक भी एंटरप्रेन्योरशिप जब चल रहा है ना, तो वहाँ पे क्या आता है? पहले आता है, अब कोई आप बताया नहीं आप लोगों ने अभी तक हमको, लेकिन रिस्क फैक्टर रहता है। लेकिन हर कोई एंटरप्रेन्योर है ना, जो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुली आगे चलना चाहता है, तो उसको जो रिस्क लेना होता है वो होता है कैलकुलेटिव रिस्क।
ये भी आपको पता है, हम जस्ट स्टडी को जोड़ रहे हैं आपके सामने। कैलकुलेटिव रिस्क क्यों? क्योंकि रिस्क तो सबको ही लेना है, जॉब में शायद रिस्क नहीं है लेकिन है, आएंगे हम एक स्लाइड तक आ जाएंगे तो एक स्लाइड में है जॉब में भी रिस्क है, तो उसको कवर करने के लिए कैलकुलेटिव रिस्क रहना चाहिए। तो एक एंटरप्रेन्योर को ठीक क्या क्या और डायग्राम चाहिए हम देखते हैं एंटर के साथ साथ। देखिए यहाँ पे बहुत सारे आ गया, ABCD बोलकर बहुत कुछ, टेक्नोलॉजी चाहिए, एक कैपिटल चाहिए, रिस्क होता है, ये फेल्योर होता है, सक्सेस आता है, तो ये सब मिला के एक जुट बन के एक जब आप गांठ लेते हैं ना एक साथ एक माला, तो ही एक एंटरप्रेन्योरशिप को आप चला सकते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट फंडा। देन और एक कसरत कराएंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट स्लाइड में। सर पकड़ लीजिए, एक एंटरप्रेन्योर दे देता है तो यहाँ पे आ जाता है बिजनेस। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करता है तो क्या समझता है कि हमारा बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। सर और एक एंटर दे देता है तो बिजनेस आ जाएगा। ठीक, तो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का क्या है, एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, बिजनेस चाहिए। वेरी गुड। अभी बिजनेस को जो आप आगे बढ़ाएंगे तो ये बिजनेस वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जुड़ जाएगा। Now you can describe a second word for me which one also starts from B but it is not called business। एक वर्ड आपको ढूंढना है जो बिजनेस बी से स्टार्ट होगा, बिजनेस नहीं होगा, लेकिन आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है, आपका जो फार्मिंग है उसको रिप्रेजेंट कर पाएगा। और नेक्स्ट जो वर्ड है बी से, वो जरा आप हमको शेयर कीजिए, कोई भी जो दिमाग में अभी आ रहा है। बिजनेस नहीं होगा लैंग्वेज, लेकिन वो स्टार्ट होगा बी से। This word also will start with B, but it is not called business, but it is represent your entrepreneurship journey। कोई भी वर्ड जो बी से आ रहा है आपके दिमाग में। बेस, ओके विवेक सर, बेस, ओके। और कोई वर्ड? बिजी, विशाल सर, ओके, बिजी, ओके। बजट, अर्चना मैम, थैंक यू। बजट, अरे किसी के नाम प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाएगा तो बुरा मत मानिए, क्योंकि कैसे काम करना है, क्या काम करना है, जो पहले स्लाइड में हमने देखा ना, आइडिया ढूंढना है, इनोवेशन ढूंढना है, उसको वहां जब करना है, मार्केट सर्वे में डालना है, ये प्रोडक्ट चलेगा क्या नहीं चलेगा उसको देखना है। इन सारे वर्डों को जम्बल करके वो अंदर से ही वो आता है एंटरप्रेन्योर का। जो सेकेंड वर्ड है वो अंदर से ही आएगा। बिजी होंगे जब स्टेबिलिटी आ जाएगा तब बिजी हो जाएंगे, लेकिन वो जो एक मैजिक वर्ड है ना वो आपके अंदर ही है। आपके मतलब मेरे अंदर है, आपके अंदर है, जो भी एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर ही रहता है। चलिए, अर्णव सर विल हेल्प टू अस। अर्णव सर एंटर मरेगा। अब ये वर्ड देख लीजिए, ब्रेन चाइल्ड। कोई भी अपना बिजनेस कैसे रन करेगा, इफ यू स्टार्ट योर बिजनेस बट व्हिच इज योर डायरेक्शन, वो क्या होना चाहिए, हाउ यू विल रन योर बिजनेस, वो कौन सा रोए होना चाहिए, वो आपके ब्रेन से आता है। तो प्लीज कंसिडर योर बिजनेस, कंसिडर योर एंटरप्रेन्योरशिप एज योर ब्रेन चाइल्ड। इफ इट इज कंसिडर, देखिए हमारा जो ब्रेन चाइल्ड है सनी रे सोल्यूशन, हमारा ब्रेन के ऊपर ही हम उसको डाल दिए है, वो मुट कर दिया है कि हाँ सनी रे सोल्यूशन हमारा ब्रेन चाइल्ड है। तो टीम में जो जो जुड़ेगा बाद में वो क्या करेगा कि उसको जो मेरा जो ब्रेन चाइल्ड है, जिसका मेरा जो आइडिया है उसको फर्निश करेगा या उसको एलाबोरेट करके फिर से उसको बढ़ाएंगे हम लोग। तो आप जो भी एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ना, उसका सेकेंड वर्ड ब्रेन चाइल्ड उसको अंदर से ही आता है। देखिए जब घर पे हम लोग बड़े हुए हैं हर कोई, तो जो पेरेंट्स रहता है ना, पेरेंट क्या करता है, पेरेंट टेक एवरी प्रिकॉशन गिव टू अस। पकड़ लीजिए, मनी चाहिए मनी दे देता है, एजुकेशन गुड एजुकेशन, व्हिच एजुकेशन इज प्रेफर फॉर अस, ही विल सजेस्ट टू अस, ही गिव गुड क्लॉथ, गुड फूड, गुड एवरीथिंग। अगर एवरी एंटरप्रेन्योर टीच her business as her brainchild or your child, then you give full attention to your brainchild,
then it is possible one day it can furnish and it can make a big tree. जैसे पकड़ कर चलते, मैंने एक चारा गाछ लगाया है, आएंगे, जो सनीडे सोल्यूशन है अभी छोटा है, तो क्या है ना, अगर हमने जब स्टार्ट किए थे तब सनीडे सोल्यूशन को कोई नहीं पहचानते थे इतना, सबको पता क्या था, संगीता सेन एक बिजनेस स्टार्ट किया है, जितना भी इंडस्ट्री मुझे पहचानते थे तब तक। अभी सनीडे सोल्यूशन पता है कि हाँ सनीडे सोल्यूशन काम करता है, ये काम करता है, लेकिन एक दिन आएगा, मेरा ड्रीम है ये, एक दिन आएगा कि बंदा सब कोई बोलेगा संगीता सेन को तो पहचानते नहीं, लेकिन सनीडे सोल्यूशन को पहचानते हैं। दिस इज द कम ट्रू ऑफ आवर ड्रीम। अभी एंटरप्रेन्योर को क्या होता है ना, अपना बिजनेस जब बड़ा हो जाता है तो स्टेबिलिटी आ जाता है, तो he or she thinking that I get everything. But when you study in for the entrepreneurship language, you take that lesson. बहुत सारे entrepreneurship ऐसा है ना, within 2 years they can ruin. I don't afraid to you don't start your startup, but I also study that. किसी के सक्सेस से सीखना है तो सीखिए, लेकिन और भी अच्छा है किसी के फेलियर से सीख लेना. If you take any lesson from any successful story, it's better. But if you choose, I take lesson from the failure. Why the business is not going? Why he or she fail from that? It is a very good lesson for as an entrepreneur. As an entrepreneur, I think always that it's very need to ask, ये क्यों वो entrepreneurship फेल हुआ है. अगर ये पता चलता है ना, तो आप आपको सर्वाइवल में बहुत सारे इफ एंड बट जोड़ सकते हैं. नेक्स्ट ओके, ये इंट्रोड्यूस का पार्ट है. सर ने इंट्रोड्यूस किया है, मेरा नाम भी बोले है, किसी को याद शायद नहीं रहेगा मेरा नाम क्या है. अच्छा, मेरा नाम संगीता सेन है, हम फाउंडर सीईओ है किसके, सनीडे सोल्यूशन के, जो हमारा ब्रेन चाइल्ड है. लेकिन इतने में सही नहीं है. अगर हमने बताया कि हम संगीता सेन है, फाउंडर सीईओ है सनीडे सोल्यूशन के, उससे पहले तक जोड़ रहे थे ना कि हम 14 इयर्स सर्विस किए हैं. हाँ, डेप्यूटी मैनेजर वाला जॉब छोड़ के हमने एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट किए थे. तो व्हेन आई स्टॉप माय डेप्यूटी मैनेजर जॉब, some friends and the other person of my family, not my closer family or relatives वगैरह बोल रहे थे कि इसका दिमाग ठीक नहीं है. अच्छा खासा जॉब तो था, छोड़कर कहाँ जा रहा है, बिजनेस हो सकता है. पहले तो बंगाली जो रहता है वो बिजनेस नहीं करता है, और बंगाली वुमेन तो बिजनेस नहीं कर सकता है. नेगेटिविटी आएगा. यू कैन ओवरकम एवरीथिंग अगर आप में वो विश्वास है. वो विश्वास कैसे आएगा, हम नेक्स्ट जितना जाएंगे स्लाइड तक वो आपको दिखाई देंगे कि हाउ कैन आई गेट दैट एट बिलीवनेस ऑन माई सेल्फ कि आई कैन डू, आई विल कैन डू. ये जो है ना मेरे दिमाग में आ रहा था. क्यों आ रहा था, देखिए यहाँ पे है, हम है फाउंडर, मतलब हम है एंटरप्रेन्योर है, जैसे सर ने भी मेरे इंट्रोडक्शन में बताया था. तो उसके साथ हम जोड़ते हैं एक चेन. पहले क्या है, संगीता सेन एक एंटरप्रेन्योर है, देन क्या है, संगीता सेन एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है. लेकिन मेरे साथ और एक लैंग्वेज जोड़ता है, वो है संगीता सेन एक टेक्नो वुमेन एंटरप्रेन्योर है. क्योंकि ये टेक्नो वुमेन एंटरप्रेन्योर इतना ज्यादा नहीं है हमारे जो लिस्ट है या अभी तक एमएसएमई का, इतना टेक्नो वुमेन एंटरप्रेन्योर तो नहीं है. तो टेक्नो वुमेन एंटरप्रेन्योर है. उसके बाद और एक जोड़ गया है कि रूरल टेक्नो वुमेन एंटरप्रेन्योर है. तो देखिए, हम थे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसके हिसाब से कितना तोड़ मोड़ के हमने इस जगह पे आया है. तो एक स्टोरी और एक बार आप लोगों को दिक्कत देंगे, एक एक्सपीरियंस शेयर, एक एग्जांपल शेयर करेंगे आप लोगों के साथ. पकड़ कर चलते हैं, हम लोग 2 पोटैटो लेते हैं और 2 एग लेते हैं और सम कॉफी बीन्स ले लेते हैं हाथ से. कोई 20 मिनट तक उसको उबलने के लिए अलग अलग कंटेनर में डाल के हम उबलने दे देते हैं. 20 मिनट के तक 2 पोटैटो एक बाउल में बॉयल होगा, 2 एग एक बॉयल में बॉयल होगा, और कुछ कॉफी सीड एक बाउल में बॉयल होगा. तो बताइए नेचर, तो आफ्टर 20 मिनट्स व्हाट इज द चेंज द नेचर ऑफ दैट पोटैटो, एग एंड कॉफी सीड. क्या चेंजेस आएगा इसके अंदर. आप हो सकते हैं तो इतना लिख नहीं सकते, तो आप ऑडियो ऑन करके भी बता सकते हैं हमको कि 20 मिनट तक एक पोटैटो को हम उबाल लेते हैं, 2 एग को उबालते हैं और कुछ कॉफी सीड को भी उबालते हैं. तो हाउ विल वी चेंज आफ्टर 20 मिनट्स, वो चेंज कैसे आता है. चलिए एक एक कर बताइए. पोटैटो को 20 मिनट तक हम उबालेंगे तो क्या चेंज आएगा.
become soft. Oh, Vishal sir, thank you. Yeah, this is the right answer. Become soft. क्या है ना, पोटैटो जब उबलने के पहले जब आप बाजार से लाते हैं ना, एक बार देखिए पोटैटो बहुत हार्ड रहता है, तो जब हम उसको उबल कर दे देंगे 20 मिनट के बाद वो सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब उसको हम स्मैश कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, जब हम एक बाजार से लाते हैं वो कैसे होता है? विशाल सर भी आंसर करिए, लेकिन कोई और भी बता सकते तो बताइए। जब एक लाते हैं एक तरह रहता है, आफ्टर 20 मिनट उबलने के बाद उसका हाउ इट विल नेचर विल बी चेंज, एक कैसे बिहेव करेगा 20 आफ्टर 20 मिनट्स बॉइलिंग? एक का शेल कैसा रहता है? हार्ड रहता है ना, वो आपके हाथ से गिरेगा तो फट जाएगा ना आफ्टर 20 मिनट्स आफ्टर द बॉइलिंग। ये क्या पॉसिबल है? आप क्या उसको आफ्टर बॉयल आप उसको छोड़ देते तो बिखरता है क्या एक? यस नो कुछ तो बता दीजिए। नो। और शिवानी मैम, थैंक यू विवेक। ओके, तो ये नहीं होगा। तो थर्ड क्या होगा? थर्ड वाला टॉपिक था हमारा कॉफी सीड लिए थे हम लोग, कॉफी सीड को हमने उबलने को दे दिए थे। तो आफ्टर कॉफी सीड जब 20 मिनट बाद उबल कर आएगा तो क्या रहेगा? कॉफी सीड क्या दिखाई देगा? नहीं, कॉफी सीड तो दिखाई नहीं देगा। तो क्या होगा? एक स्मेल आएगा, काफी तब तक तैयार हो चुका होगा, इज रेडी फॉर द टेकन एंड इट इज फॉर गिविंग अ स्मेल। तो क्या है, एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से अब सोचते हैं हम लोग, हम पोटैटो के तरफ बाहर से पूरा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कोई भी एक बैरियर आता है, कोई भी एक ऑब्स्टेकल आता है, हम टूट जाएंगे, हम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टर नहीं रहना चाहिए। अगर चलते हैं कि एग लेकर चलते, एक अंदर से पूरा स्ट्रॉन्ग था, बाहर से उबालने के बाद वो अंदर से नरम हो जाता है, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सही नहीं है। लेकिन कॉफी सीड क्या किया? कॉफी सीड एक ऐसा था कि कैटलिस्ट के तरह वो वाटर को चेंज कर दिया, एक प्लेन वाटर को अपने रंग में ढल लिया। आप ब्रू लेंगे तो एक खुशबू आएगा, आप नेस्कैफे लेंगे तो दूसरा खुशबू आएगा। तो वो जो खुशबू आपको चेंज कर देता है, आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा होना चाहिए कि कोई भी एक बाहर से कुछ आ जाता है, कोई हार्डल आ जाता है, कुछ डिफिकल्टीज आ जाता है, तो यू कैन नॉट चेंज योर डिसीजन। नहीं सब तो सही बोल रहे थे, ये तो मेरे से नहीं होने वाला था, आई कैन क्विट है ना। और दो बोल रहे थे ना, आप देखेंगे तो देखेंगे, यू कैन इफ यू मेक द स्टडी एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप 2 इयर्स में खत्म हो जाता है। तो फेलियर से जो बोल रहे थे ना, सीखिए। तो ये एक एग्जाम्पल है, पोटैटो ले लीजिए, एक ले लीजिए और कॉफी सीड ले लीजिए, एक की तरह तो आपको बनना ही है। तो हम चाहेंगे कि हो सके तो हर एक एंटरप्रेन्योर आपको खुद को कॉफी सीड की तरह समझे। मुझे जहां पे भी ढलना है ढल लीजिए, हम उसी तरह से ढलकर निकल आएंगे। यही होगा शायद एंटरप्रेन्योरशिप का, मेरे तरफ से यही है एक्चुअल वर्ड फॉर दैट, और एक एग्जाम्पल। अभी तो सानी सोल्यूशन के बारे में भी बता देते हैं। सानी सोल्यूशन क्या करता है? सानी सोल्यूशन, आफ्टर माय 14 years of my job journey, I left my deputy manager job and start my entrepreneurship. तो ये एंटरप्रेन्योरशिप सानी सोल्यूशन का जर्नी, हम बोल रहे थे ना छोटा है, क्योंकि इसका उम्र ही छोटा है। इसका उम्र छोटा है मतलब ये 3 साल का बेबी है अभी तक मेरे लिए। तो ये 3 साल में हम लोग क्या किए, जब हम लोग when we start for our entrepreneurship, so we are thinking that which is our target audience or which type of work we are done, because देखिए, क्योंकि giant industry, so many giant people have, so many big company will have Bikram Solar, Sobha Solar, HR Solar, they have the authority to doing the big work, big plant orientation job. So we are thinking who is our perfect customer or perfect audience. So we think the home sector is our perfect audience, because the giant is not come and serve the people. So if we can give the service and they can get from our benefit from that, so it is easier for the customer. So our primary target audience is domestic. In Calcutta, if you see, we already installed 5 flower plants in home domestic sector. In Medlipur side, you can get
above 7 households who are use the solar power plant through sunny day solution. It is a twist. In that Calcutta site, when we install the solar power plant, they can reduce the electricity bill 45%. But in that case of the Mednipur, they get the zero electricity bill. So it is our achievement that some customer of us get the zero electricity bill. But जब चलते चलते हम लोग काम कर रहे थे तो टेंडर आते गए. We are appeal for that and we can get that work. Now BPCL, Bharat Petroleum Corporation Limited is our customer. WBPC our customer. जो पंचायत में रहते हैं, कोई भी आप लोग आपके यहाँ से कोई भी बंदे पंचायत एरिया में रहते हैं तो देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाला लाइट था वो चेंज हो रहा है, वो चेंज होके अभी सोलर लाइट में कन्वर्ट हो रहा है. तो वो जो वाला काम है पंचायत वाला वो भी हम लोग करते हैं. पंचायत लेवल में वाटर सिस्टम का भी काम चल रहा है. जो वाटर पंपिंग होकर आएगा अंदर ऊपर से वो सोलर से कॉर्पोरेट होगा, वो भी सनी डे सोल्यूशन काम करता है. तो क्या हुआ, जब हम आए थे तो एक लेवल में सोच कर आए थे. नाउ वी डाइवर्सिफिकेशन फॉर आवर वर्क. नेक्स्ट क्या हुआ, जब हम लोग ये करते गए ना तो देखे कि इनिशियल कॉस्टिंग ऑफ द प्लांट इज हाई. So many people not interested to take that solar power plant for the home. Then we can change our mind. Our R&D team take a mission that we convert electrical appliances to solar appliances. Now successfully we run 11 products in our market through our R&D. We can get it. Solar lantern ले लीजिए, solar cap, solar sensor light, solar air freshener, car air freshener. जो गोदरेज योन वाला कार एयर फ्रेशनर होता है ना, एक महीने के लिए हम लोग लगाते हैं, तो उसको हम कम खर्च में डाल दिया है सोलर में. तो ऐसे करते करते इन्वेंशन करते गए और अभी 11 प्रोडक्ट चल रहा है. वो एक भाग सब्जेक्ट है. मार्केटिंग के लिए जब भी हम आएंगे तो हम आपको एक एक करके बताएंगे कि व्हाई वी चूज दैट प्रोडक्ट. सब प्रोडक्ट ने हमने इन्वेंट किया है, सर्किट को इन्वेंट किया है, लेकिन जो बात ऑफ प्रोडक्ट का जो माइंड सेटअप है सबको हमने नहीं किया है. बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि कस्टमर गिव अ आइडिया, कैसे ये हो सकता है, ऐसा होता तो अच्छा होता. तो वी टेक दैट आइडिया एंड वी थिंक दैट इफ आवर R&D टीम मूव फॉर इट. तो ऐसे करते करते चैनल ऑफ प्रोडक्ट अब हमारा 11 प्रोडक्ट हो चुका है. इसके साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट और इंस्टीट्यूट में हम लोग सोलर का भी कोर्स कराते हैं. सनी डे सोल्यूशन का भी एक सोलर वाला कोर्स है, एक बेसिक है, एक एडवांस है. क्योंकि कोई बंदा करना चाहता है काम तो उसको सीख कर जाना चाहिए. ये हमारा माने ये हम सोचते हैं, भूल भी हो सकता है, लेकिन ये हमारा थिंकिंग है कि इफ यू डू एनीथिंग, वो आएंगे थोड़ा देर में. इफ यू डू एनीथिंग देन यू कैन लर्न फ्रॉम इट. आफ्टर लर्निंग इट कैन गिव यू द प्रॉपर रिजल्ट. देखिए यहाँ पे हमने वही बात जहाँ पे खत्म किया वहां पे स्टार्ट करते हैं कि लर्निंग इज नेसेसरी फॉर एवरी वर्क. अब मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, अब अकाउंटेंसी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, हम टेक्निकल स्टूडेंट है, हम R&D में रखते हैं, लेकिन कोई भी एक लर्निंग तो हम लोग कंप्लीट किए है ना. कोई भी एंटरप्रेन्योर अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी चूज करने के जब सोचेंगे, देखिए हम इंजीनियरिंग पे रहे तो हमको यही करना था, ये नहीं था. हम हॉर्टिकल्चर में भी जा सकते थे, हम दूसरे कोई भी डिविजन में जा सकते थे, हम वेस्ट मैनेजमेंट भी चूज कर सकते थे, अभी भी कुछ चूज कर सकते हैं. आप कोई भी, आप जैसे कोई भी यहाँ पे है वो भी कोई भी ना कोई डिसीजन ले सकते हैं. लेकिन जो भी डिसीजन लेना है, जो भी आपको एक पाथ चूज करना है, उसके लिए प्रॉपर लर्निंग चाहिए. क्यों चाहिए? अगर आप देखेंगे कि कोई भी, जैसे हमारा पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का लर्निंग था, उसके बाद हमने सोचा कि मुझे कहाँ जाना है. ये प्रॉपर लर्निंग के मैजिक आप देख सकते हैं. अब जो भी कोई यहाँ पे है, अब एक बार देख लीजिए लर्न लिखा हुआ है. अभी लर्निंग खत्म होने के बाद आप एल को हटा दीजिए, एक वर्ड आपको मिलेगा, आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं. अगर लर्निंग के बाद, प्रॉपर लर्निंग के बाद आप कोई काम करने आएंगे ना, एल को हटा दीजिए, क्या मिलेगा आपको? आफ्टर कंप्लीट योर प्रॉपर लर्निंग, व्हेन यू डिलीट द एल वर्ड, यस सर, यस मैम, यस अर्न. ये बहुत सारे बंदे ने एक साथ अर्न भर दिया है. अर्चना मैम लास्ट भरा है, थैंक यू मैम. देखिए अर्न, ये लर्न के बाद अर्न आता है. तो प्रॉपर लर्निंग ही नहीं, मेरे पास नहीं है, तो हम कैसे अर्निंग में आएंगे? कोई भी एंटरप्रेन्योर को ये सोचना चाहिए कि इफ आई गेट द प्रॉपर लर्निंग ऑफ दैट सब्जेक्ट, जिसे लेकर मुझे आगे जाना था, तो इफ आई एम गेट द प्रॉपर लर्निंग, देन आई कैन एक्सपेक्ट फॉर माई प्रॉपर अर्निंग फ्रॉम दैट.
Yes or no? अभी आता है राइट डायरेक्शन। कैसे पता चलेगा कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करना है? जैसे मेरा वाला था कि मुझे टेक्निकल नॉलेज था, तो मुझे मेरा राइट डायरेक्शन क्या होना चाहिए? आपके पास तो बिजनेस वाला फंडा है ही, माने अकाउंटेंसी है, जीएसटी वगैरह आपको पता है, जो पहले हमको पता नहीं था। हम जब डेप्यूटी मैनेजर थे थोड़ा बहुत वैट वगैरह के बारे में सोच सुने थे, क्योंकि इस प्रोडक्ट में इतना वैट लगता है, ये सब सुने थे। या someone say something? Yes, Shantanu sir. Shantanu sir, are you say something sir? Or I am continue? তো কথা বল না, কি প্রবলেম আছে তোর এখন? Shantanu sir, are you saying something or I am continue? Okay. Right direction. How can you choose your right direction? तो पकड़ कर चलते हैं कि आप कोई बिजनेस स्टूडेंट है, आप बिजनेस पे कैरी करते हैं, अकाउंटेंसी आपको पता है, तो आपको कौन सा डायरेक्शन में जाना है? आप टेक्निकल डायरेक्शन में जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं। कोई भी एक कोई भी लाइन पे जाना है तो डायरेक्शन, प्रॉपर जो डायरेक्शन है उसको चूज करना है। हम भी जब चूज किए थे ना, तो क्या है ना, हमको हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिकल वाला नॉलेज था, उसको कन्वर्ट करना था ऐसे कोई बिजनेस में जो आगे चलकर निकल जाएगा। When I study from that, which business will after 5 or 10 years, which business will carry on, so I will so see that the solar business will take a benchmark from that 5 to 10 years. So I choose solar because the solar power plant designing and electrical power plant designing is almost same. Electronics part is have both sections. So it is my 14 years culture, electrical and electronics. So it is very easier for that I choose the solar division. Or no? तो क्या हुआ जब आपने चूज किया कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, जॉब छोड़कर आना है, तो क्या था, कंफर्ट लाइफ था, एक अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था, उसको हैम्पर करना है, अभी अनइजी लाइफ पे जाना है। क्यों अनइजी है? एंटरप्रेन्योरशिप पे तो बहुत सारे बाउंडिंग है, बहुत सारे नया नया चीज सीखना पड़ेगा। तो इट इज अ न्यू वे, जो जिसमें 3-4 वे खुल जाएगा, उसमें मुझे कहाँ पे जाना है, कहाँ से कुछ निकल कर लाना है, इट इज अ डिफरेंट थिंग ऑफ दैट। तो कंफर्टेबल लाइफ को अनइजी लाइफ में डालना था मुझे, इसलिए हमने डाले थे। अगर कोई आफ्टर दैट आवर कोर्स ऑफ BBA कोर्स, you can choose your entrepreneurship, it is okay. If you think I do some job at first and then come to entrepreneurship, it will also be okay, because the job will give you the more extra mileage when you operate your entrepreneurship. Entrepreneurship जो है ना, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, एक पकड़ कर चलते हैं, ये भी एक प्लेग्राउंड है। क्यों? देखिए, क्रिकेट में एक रूल्स रहता है, फुटबॉल में भी रूल्स रहता है, हॉकी में भी रूल्स रहता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को भी आप एक गेम के तरह लीजिए। एज अ स्पोर्ट्समैन, इफ यू चूज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ गेम और ए प्लेग्राउंड, इज इजियर फॉर यू। अगर एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अगर 2 बच्चा, एक ह्यूमन बेबी है, चाइल्ड है 3 साल का, और एक पप्पी है 2 साल का, ओपन टेरेस में खेल रहा था, तो अगर आप बैठे हुए हैं वहां पे, किसको नॉक करेंगे कि उसके नजदीक मत जाओ, यू डोंट गेट दैट टिल एंड? किसको नॉक करते हैं हम? वो पापी को या वो जो ह्यूमन बेबी है उसको? कर चलते हैं कि वी आर स्टेइंग इन ओपन टेरेस, his height is more than 10 feet or 12 feet, एक ह्यूमन चाइल्ड खेल रहा है और एक पपी खेल रहा है, तो किसको आप नॉकिंग में डालेंगे कि उस तरफ मत जाओ, उस तरफ जाओगे तो गिर जाओगे? किसको हम लोग नॉक करते हैं? ह्यूमन बेबी को। थैंक यू विवेक साहब। ह्यूमन बेबी को। तो क्यों? देखिए, ये उल्टा होना चाहिए था ना, तो क्योंकि ह्यूमन तो सबसे ज्यादा अपना इंटेलिजेंस दिखाता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस इज सो ग्रेट,
मशीन से पहले मशीन को वी मेक द मशीन, वी मेक द गेट लैंग्वेज, ओके टर्मोलॉजिकली गेट लैंग्वेज 0 1 देकर एक प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करते हैं। तो व्हाई समवन टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ह्यूमन बेबी? बिकॉज डायरेक्शन और प्लेग्राउंड ये बहुत जरूरी होता है कि आप कौन से फील्ड में खेलने आ रहे हैं, उसका रूल्स जरा पता कर लीजिए दादा। क्योंकि देखिए मैम और सर, अगर रूल्स नहीं पता रहेगा, पकड़ कर चलते एक छोटा रूल्स बताते हैं हम, जो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में मिला है, वो एक छोटा रूल शेयर करते हैं। किसके साथ रिलेशन को बिल्ड करना चाहिए, माने जब हम लोग वी आर स्टार्टिंग अवर एंटरप्रेन्योरशिप, व्हिच इज द मोस्ट रिलेवेंट पर्सन जो जिसके साथ हमें एक अच्छा रिलेशन बनाकर रखना चाहिए। क्या आप लोग भी गाइड कर सकते हैं किसके साथ आर यू मेक अ गुड रिलेशन फॉर योर बिजनेस? कौन सा एक चीज रहेगा और बंदा रहेगा कि किसके साथ हमको सबसे ज्यादा रिलेशन में रहना है, मुझे बिजनेस आगे ले जाना है? तो कोई भी बता सकते हैं किसके साथ हमको रिलेशन सबसे ज्यादा अच्छा रखना चाहिए? यही है प्लेग्राउंड का रूल्स, एंटरप्रेन्योरशिप प्लेग्राउंड का ये रूल्स है। पहले वो एक छोटा सा, ये एक छोटा सा रूल्स है, मैंने बहुत सारे रूल में एक हम आपको शेयर करने वाले हैं। अभी मैजिक देखेंगे, एक मैजिक कैंडी आएगा इस रूल्स में। किसके साथ आप बिजनेस करेंगे तो किसके साथ सबसे ज्यादा रिलेशन बनाकर रखना चाहेंगे? आई कस्टमर, ओके विशाल सर, ओके विवेक सर, कस्टमर्स या कस्टमर्स विवेक सर। और किसी को वो रिलेशन भी बनाना नहीं है? अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ माने हम विच आई एम डिलीवर्ड, आर यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट? या शिवम सर, ये समवन इज फर्स्ट बंदा ने कुछ हमको बोला है कस्टमर्स, या थैंक यू। So few banda will say that customers, yes sir, customer is the first priority, customer is God, is okay, but एक मैजिक कैंडी भी है आपके साथ, वो है आपका सप्लायर। पकड़ कर चलते आप 10 रुपया लेके पॉकेट में बिजनेस करने आए हैं, ओके। आफ्टर दैट आर यू गेट a 8 rupees वर्क, यू परचेज द मटेरियल एंड यू गॉट दैट जॉब, 8 rupees का काम हो गया है, पॉकेट में 2 रुपीज है। अगर ये काम आप प्राइवेट में किए हैं ना, तो आपके पैसा आने में, ये ऑर्डर से पैसा आने तक 3 महीने लगता है। गवर्नमेंट का होगा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का हो तो वो बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो छोड़ देते हैं हम, प्राइवेट में ही सोच कर चलते हैं अभी कि आपको 3 महीना लगेगा। तो 8 रुपये आपके पास था ही 10 रुपीज, आप 8 रुपया उसमें दे दिया प्रोजेक्ट को, पॉकेट में है 2 रुपये, तो आप 2 रुपये लेकर तो नया कोई प्रोजेक्ट ढूंढने नहीं जाएंगे सर, तो 3 महीने के लिए वेट कर लीजिए। अगर 8 रुपये डालकर कोई काम किए हैं तो आप 1 रुपया तो जरूर प्रॉफिट में रखेंगे, तो 3 महीने बाद तो आपके पास 9 रुपया आएगा। तो ऐसे कर हम सोचते हैं, तो साल भर में आप कितना काम कर पाएंगे? एक साल, पहले साल में 3 महीने के गैप में काम करेंगे तो 4 काम कर पाएंगे। हम सोच कर चलते कि चलिए हम 8 रुपया वाला काम 4 कर लिए, और 8 रुपया में हमको 1 रुपया का फायदा भी आया है, तो ईयर एंड में आपके पास कितना रुपया रह जाएगा? जब नेक्स्ट ईयर आप स्टार्ट करेंगे ना बिजनेस, 4 विवेक सर, 4 आपने काम किया है, 4 रुपीज आपके पास है, ओके, वो प्रॉफिट वाला रुपीज है। अब जो पॉकेट में 10 रुपीज था वो कहाँ गया था? वो तो आप डाले है ना, तो उसको भी तो पेमेंट 3 महीने में आएगा। तो नेक्स्ट ईयर आते आते आपके पॉकेट में प्रॉफिट का 4 रुपीज के साथ साथ आपका जो पहले वाला 10 रुपीज था वो भी रह जाएगा। तो आपके पास कितना हो गया? 14 रुपीज। हाँ 14 विशाल सर, राइट, 14 रुपीज आपके पास आ गया है। अब आप पकड़ कर चलते हैं, ये तो बिजनेस वाला कैलकुलेशन, ये आप लोगों को तो मुझसे ज्यादा आना चाहिए। हम तो ये पढ़ के घस के सीखे हैं, आप लोग तो ये पढ़ाते हैं ना हम लोगों को। तो 14 रुपीज आपके पास आ गया है, तो अभी 14 रुपीज लेके आप नेक्स्ट ईयर चालू करेंगे और सप्लायर को जाकर बताएंगे, दादा हम तो 4 काम किए, आपसे किए हैं, पैसा भी टाइम में आपको दे दिए है, अभी तो कुछ क्रेडिट दे दीजिए। ये जो मैजिक कैंडी है वो सप्लायर ही आपको देख सकते हैं। नो वन कैन गिव यू दैट मैजिक कैंडी बिकॉज दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी। कस्टमर आ गए, पैसा आगे से पैसा नहीं डालने वाले हैं, काम करने के बाद ही मिलने वाला है। इन्वेस्टर रहेगा तो इट्स ओके, इन्वेस्टर गिव यू सम मनी, बट ये जो क्रेडिटेबल का जो ऑप्शन है ना, ये आपको सेफ आपको दे सकते हैं आपका सप्लायर।
तो इफ सप्लायर गिव यू द 2 month वारंटी, ओके चलिए 2 महीने का क्रेडिट आप ले लीजिए। इफ सप्लायर गिव यू द 2 month क्रेडिट, देन आपके पास 14 रुपया है, आप या स्टार्ट करने वाले हैं, 10 रुपया का काम पकड़े है, 10 रुपया आपने इन्वेस्ट भी कर दिया है, लेकिन पॉकेट में 14 रुपीज ही है। तो क्या है, एक एंटरप्रेन्योर और भी रिस्क नहीं लेगा? कम से कम 5 रुपया का और एक कम तो पकड़ ही लेगा कि नहीं लेगा, बताइए? दे टेक दैट अपॉर्चुनिटी और नॉट? एंटरप्रेन्योर टेक दैट अपॉर्चुनिटी, यस और नो? ओके विशाल, तो एंटरप्रेन्योर को, हाँ विशाल, ईशा मैम थैंक यू, विनीता मैम थैंक यू मैम। तो ये अपॉर्चुनिटी जब हम ले लेंगे ना, श्वेता मैम थैंक यू, तो ये जो हम अपॉर्चुनिटी लेंगे ना, तो क्या होगा, बिजनेस में साइकिल ऑफ द मनी बढ़ेगा। इफ यू ओके मैरी मैम, बिजनेस में साइकिल ऑफ जितना बढ़ेगा ना, साइकिल ऑफ द मनी, ये हमसे ज्यादा आपको पता है साइकिल ऑफ मनी क्या होता है। साइकिल ऑफ मनी से कैसे हमको दोबारा उसको डालना है। तो ये साइकिल ऑफ मनी जितना बढ़ जाएगा, इससे आपका काम बढ़ेगा। तो रिलेशन रखना है कस्टमर के साथ, कस्टमर इज गॉड इज ओके, बट रिलेशन और एक के साथ बनाइए, वो है सप्लायर, वो इतना लिखा एडुकेटेड नहीं होगा, ही डोंट नो द टर्मोलॉजी ऑफ एज पर दैट, वो 3 जो पता कर चला जाएगा, ये 3 सूता कम है, बंगाली में बोलते हैं हम लोगों को, जो ऐसा रहता है, ये ऐसा है। उसको हम लोग इंजीनियरिंग टर्म में दादा द स्क्रू गेज माप इज 5.0.55 मिलीमी, वो बोलेगा आइए, पता नहीं है हमको इतना। तो which is the language of supplier, you can read that at first and you एक्सेल से आप देख रहे ना, उसको कैसे चाहिए, उसको कैसे आपको टीच करना है। इफ यू टीच द पॉजिटिवली देन यू कैन गेट द मैजिक कैंडी। तो ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर का प्लेग्राउंड में रूल रहता है हम लोगों को, तो वो एक रूल हम बताया कि कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है। वन ऑफ सर थियोरी तो कुछ होता नहीं। देखिए, एक एंटरप्रेन्योर को अपना कैश को कैश तक रिफंड करना होता है, मतलब KASH कैश मतलब आपका नॉलेज, आपका एटीट्यूड, आपका स्किल और आपका हैबिट, जिसको लेकर हम पहले से बता कर आ रहे थे पहले स्लाइड से कि क्या क्या चाहिए हम लोगों को। लर्निंग के लिए नॉलेज चाहिए, हमारा अंदर टोटल एटीट्यूड चाहिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड से है हम, हमारा सब कुछ है लेकिन स्किल ही नहीं है तो बंदा नहीं चलेगा हमारा, और हैबिट भी ठीक रहना चाहिए। तो हमारा KASH ये वाला कैश को हमको CASH कैश में ट्रांसफर करना है। कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी अपना रहेगा, वो KASH को जितना हम बढ़ा पाएंगे, जितना एनलार्ज कर पाएंगे ना, उतना हमारा CASH में भी इफेक्ट आ जाएगा। वो आप लोगों के हिसाब से क्या होता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड लेजर बुक, इतना हमको तो पता नहीं है, और हम GST वगैरह अभी देखना पड़ता है तो देखते हैं। अभी GST के बारे में थोड़ा पता है कि कितना भरना पड़ेगा, कितना नहीं भरना पड़ेगा। तो 20 के अंदर हमको GST क्यों नहीं डालेंगे तो 50 रुपया का पेनल्टी और लग जाएगा। तो ये सब तो आप लोगों को पता होता है सर। तो ये अपना जो भी है KASH को KASH जितना बढ़ेगा, जितना स्ट्रांग रहेगा ना, वो एज ए एंटरप्रेन्योर मुझे पता चलता है कि CASH भी उतना जल्दी आ सकता है। ये थ्योरी है मेरे तरफ से, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी एंटरप्रेन्योर के ऊपर कि KASH को आप बढ़ाकर देखिए, उसका CAH बढ़ जाएगा। कैश से कैश तक जाने में ये रास्ता बहुत आसान रहता है। अनुष्का, चलिए यहाँ पे एक लाइन है, एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस से आपको एक वर्ड निकल कर लाना है। पहले आप पूरा सेंटेंस देख लीजिए और इस पूरा सेंटेंस से आपको एक वर्ड निकल कर लाना है जो हर कोई एंटरप्रेन्योर को करना ही है, माने यही है और कुछ है ही नहीं। ये मेरा क्लू था। अभी इस पूरा सेंटेंस से एक वर्ड निकाल कर लाइए आप लोग। शिवम वर्मा सर, यस तो नहीं है, इससे एक वर्ड निकल कर लाना है आपको, यस नो नहीं है, एक वर्ड निकल लेगा। आप लिखिए सर्विस, शिवम सर, ओके सर्विस, ओके हम रखते हैं आपका, ये रखते हैं, बट नंदिनी मैम सर्विस नहीं, इसको अच्छा ठीक है, दोनों सर्विस लिख चुका है, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे और जो भी है यहाँ पे 16 और 17 पीपल क्रिएटिंग, ओके ईशा मैम एंड श्वेता मैम, ओके सेटिस्फेक्शन अर्चना मैम, ओके
इफेक्टिव ओके। चलिए अभी इस हर बिजनेस विशाल सर ओके, अभी हम एक और एक काम करते हैं, मोटिवेशन ओके। थैंक यू फॉर इंटरेक्टिंग मी। तो अभी एक काम करते हैं ना, जितना भी वर्ड है सबका एक जो फर्स्ट वर्ड है ना उसको एक जगह पे लिख लीजिए। तो मेरी मैम मोटिवेशन, थैंक यू मैम। ये पूरा सेंटेंस में जितना भी एक एक सिंगल वर्ड है उसका जो पहला वाला वर्ड होता है ना उसको निकल कर एक जगह पे लिखिए, तो देखिए तो क्या आ रहा है। ओ विवेक सर थैंक यू शिवम सर। दोनों को मिल गया, हाँ सबको मिल गया, ऑन ऑफ सर सबको मिल गया। अभी यही है फंडा, हम इतना टाइम से बोल रहे थे ये। हम इतना कस्टमर के साथ एक एस भी जोड़ लीजिए, क्योंकि आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो एस तक जाना है, एक तक हम लोग नहीं रुकेंगे। जो कंज्यूमर और कॉन्फ्रेंस है उसमें हम वर्क करेंगे तो एस तक जाएंगे। क्या है ना, यही एक्चुअल है। वो माने कस्टमर को क्या देना है, एक सर्विस देना है जिसमें दम रहना चाहिए, जिसको एक बार वो यूज करने के बाद हम सोलर के बारे में छोड़ देते हैं। हम आप सोचेंगे हम फिनाइल बनाएंगे, कोई सोचेगा हम वो एक लिपस्टिक बनाएंगे, कोई सोचेगा कोरोजल काजल के तरह कुछ बनाएंगे। कुछ भी हम बना सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस लाने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज है कि आपके स्टैंडर्ड सर्विस के थ्रू कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अगर आपके एफजी प्रोडक्ट बोलता है मतलब ये तो खुद से नहीं बोलेगा, ऐसे ही बेनिफिट देता है कस्टमर को, तो इस कॉल द कस्टमर नीड। और यही है शायद बिजनेस का फर्स्ट और लास्ट फंडा, कस्टमर। जो इतना टाइम से हम बोलकर आ रहे थे कस्टमर इज गॉड, कस्टमर बोलेगा वैसे सन निकला था आज तो ठीक है, शायद तो निकलता होगा, हमको तो इतना, हम तो जानते थे इससे आता था, लेकिन होता है। कस्टमर को जो भी है सही है, आपको काम करना है, लेकिन हाँ क्वालिटी और क्वांटिटी और आपका जो एफिशिएंसी है उसके साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करना है, समझौता नहीं करना है। यू डोंट कंपेयर विथ द अदर सर्विस, वो तो ऐसे काम कर चला जाता है। नहीं, if you give your full 100%, your full attitude, your cash, knowledge, your satisfaction, your habits, so your KSH give you more CAH. On of stuff. ये टारगेट ऑडियंस आपको भी पता है, हम लोग एंटरप्रेन्योर कैसे चूज करते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं तो किसके लिए, मास के लिए। इफ वी क्रिएट सम, जैसे हमारा 11 प्रोडक्ट रेंज है, 11 प्रोडक्ट रेंज में मास के लिए कुछ है, क्लास के लिए है, तो हम उसमें ना नहीं जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा सा एक मार्केटिंग हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। क्यों, कौन सा कैसे चूज करते हैं हम लोग, जितना मुझे आता है उतना बता देते हैं कि मास के लिए कितना क्या करते हैं हम लोग। आपको भी जानकारी है तो मास के लिए कि एक 700 और 800 तक कुछ प्राइस रखते हैं, विद इन 700 रखते हैं, तो मास में हमको जाना सही रहेगा। जैसे बोतल में शैम्पू बिकते हैं और 1 रुपया में भी शैम्पू बिकते हैं। डाव का जो शैम्पू है 5 रुपया में आता है, 1 रुपया तक वो घटा नहीं सकता है, क्योंकि 5 रुपया तक ही वो ला सकते हैं। वो है एफिशिएंसी का गैप, वही है इफेक्टिवनेस, जितना हो सके। जैसे आसूस वाला फोन पहले मिलता था 12, 15, 20 तक में, अब आसूस फोन मिलता था, लेकिन अभी आसूस ने बोला है कि आई डोंट मेक दैट टाइप ऑफ फोन, आई मेक द हाई रेंजर फोन, बिकॉज जो फंडा आप लोगों को चाहिए आसूस में वो इस पैसे में आएगा नहीं। अब सैमसंग वगैरह कुछ ले सकते हैं। तो ये है, मार्क तक जाने के लिए प्रोडक्ट में कंप्रोमाइज नहीं करना है। किसी को प्रोडक्ट में कंप्रोमाइज करना है तो मार्क तक नहीं भी जा सकते हम लोग। अब मेडिनिक 7 एक सोप का मेडिनिक पहले इतना बड़ा आता था, कोई भी देखा होगा तो पता नहीं हमको, पहले इतना बड़ा आता था, लेकिन आप कोई भी होटल में जाएंगे तो ज्यादातर होटल में आपको मेडिनिक का इतना छोटा सा एक ये दिखाई देगा बाहर, वो होटल से देता है। क्योंकि मेडिनिक से जब आया था देखा था इसमें तो बहुत सारा डिफिकल्टी है, दाव है, लास्ट है, सबके साथ मुझे फाइट करना है, तो हटा लिया। उन्होंने अपना एम और अपना कस्टमर का मास जो है वो चेंज कर लिया, एम और कस्टमर चेंज करके दूसरा जगह पे शिफ्ट किया है। जो निरमा पाउडर है, अब पहले भी एक ऐड आता था बहुत से दिन पहले कि वॉशिंग पाउडर निरमा, ऐसे कर एक टिंग टंग म्यूजिक आता था, कोई भी सुने हैं आप लोगों ने ये वो निरमा वाला ऐड? एक छोटा सा बच्चा घूम के खड़ा हो जाता था ऐसे फ्रॉक पहन के, वॉशिंग पाउडर निरमा, कोई भी ऐड सुने? ओ यस यस, ओ
थैंक यू, थैंक यू। तो वो जो स्टार्ट हुआ था, वो कैसे स्टार्ट हुआ था? पहले ओके, रंजना कुमारी, फर्स्ट टाइम आई गेट योर आंसर मैम, थैंक यू। तो फर्स्ट जब ये स्टार्ट हुआ था ना, तो जो बंदा जो इसने से स्टार्ट किए थे, वो पहले ये एक कंपनी का काम करते थे। जितना तो मुझे स्टोरी मैंने जानकारी लिए है वो बताते हैं हम, कि वो एक कंपनी में काम करते थे, टेक्नोलॉजिस्ट थे, वो केमिकल में काम करते थे। तो वो बहुत सारी जगह सेल्स के लिए जाते थे, वो अपना प्रमोशन के लिए, काम के लिए। तो वहां पे देखे कि बहुत सारे बंदे ऐसा है कि हाथ को पूरा खराब हो गया है लेडी का। तो सोचा कि मैं कैसे कुछ ऐसा बना सकता हूँ तो ये चलेगा। और वो जब लेकर आया मार्केट में, इतना कम पैसा में उसको लॉन्च किए थे। शायद जब पहले वाला वो लाए थे 5 रुपीज में वो पाउच पैक मिल जाता था। तो पूरा पूरा के पूरा मार्केट छा गया था उसमें। अभी तो बहुत सारे कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। तो ये क्या चाहिए कस्टमर को? कस्टमर को जो चाहिए वही देना है, लेकिन मास में या क्लास में। अभी क्लास में जाना है तो आपको 1500 2000 तक का कोई प्रोडक्ट, एफजी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं, जो क्लास पीपल लोग यूज करेंगे। अभी आते हैं कि ऑडियंस, नीड बेस्ड भी ऑडियंस होते हैं कि उसका क्या नीड है, क्या नीड है, वो देखकर हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, एफजी प्रोडक्ट। पूरा सर्विस भी दे सकते हैं कि उसका क्या जरूरत है। ओकेशन बेस्ड भी हो सकता है। जैसे पकड़ कर चलते हैं, आप सभी उम्र में बहुत छोटे हैं मेरे से। फरवरी महीने में कैडबरी कंपनी एक ऐड देता है। कैडबरी कंपनी पूरा साल ऐड देता है, लेकिन फरवरी महीने में एक ऐड देता है। उसका एक अलग सा कोई कैडबरी का डिजाइन दिखाता है। उसका स्पेशलिटी क्या रहता है? अब देखे है कभी वो ऐड? सब देखे हैं भी, दिए भी है, लेकिन अभी छोड़ दीजिए। दिए है बोलेंगे तो आप लोग नहीं आंसर करेंगे, तो छोड़कर उसके आगे जाकर बता दीजिए कि देखे है ना। वो पूरा बार में एक अलग सा कुछ कुछ एक इम्प्लीमेंटेशन रहता है, एक कुछ अलग शेप का कुछ रहता है। फरवरी महीने में वो आता है, जनवरी मिडिल से वो फरवरी तक मिडिल तक वो ऐड देता है कैडबरी में। देखे नहीं अर्चना मैम? ओके, नहीं हम गिफ्ट किया नहीं, ठीक है, देखना जरूरी था। गिफ्ट नहीं किया तो सही है, करे भी है तो सही है। प्रमोशन प्रोडक्ट नहीं है, वो एक पूरा बार में एक अलग सा चीज डालते हैं वो लोग। वो ऐड में ही देता है, पूरा बार के मिडिल में एक चीज डालता है, थोड़ा नीचे आके एक दो क्यूब छोड़कर एक मिडिल में हार्ट शेप डाल देता है। और वही हार्ट शेप को ही वो लोग प्रमोट करते हैं उस महीने में। पूरा साल वो प्रमोट नहीं होता है हार्ट। हाँ, या आयुष कुमार, नहीं ठीक है, आप खुद के लिए भी तो खरीद सकते हैं। वो मैंने सबके लिए देने वाला नहीं है, खुद के लिए भी, खुद को भी कुछ दीजिए कभी कभी आप। आई डोंट नो। ओके मेरी मैम वो रहता है, हम सब बताते हैं कि आप एक बार जब आएगा नेक्स्ट वैलेंटाइन डे से पहले आप देख लीजिए, एक हार्ट शेप वाला कैडबरी आता है, तो उस महीने वो ऐड देता है। लेकिन पकड़ देखिए आप, जब वो लोग दिवाली में ऐड देता है विवेक सर, ओके, जो दिवाली में ऐड देता है ना, वो सेलिब्रेशन वाला पैक देता है। क्यों देता है? क्योंकि सेलिब्रेशन पैक तब परिवार को लेकर देना है कि दिवाली आ रहा है तो परिवार एक साथ बैठेगा, यू नीड योर फुल फैमिली, तो सेलिब्रेशन ऐड में आ जाता है। और पूरा साल क्या बोलता है, कुछ भी हो जाए तो मीठा मुंह हो जाना चाहिए कैडबरी के साथ। तो ये जो थिंकिंग है, आपका एफजी प्रोडक्ट कहाँ पे आपको पेनिट्रेट करना है, वो इज योर कस्टमर। मास, क्लास, नीड बेस है, और ये ओकेशन बेस है। ओकेशन बेस है तो उसको रिपीटेड ओकेशन में कैसे हम डाल सकते हैं, ये है कुछ फंडा के कस्टमर को कैसे हम देख सकेंगे, कस्टमर को कैसे हम चूज करेंगे। ये समझता हम लोग बोलते हैं ना, सेल्फ इमोशनली भी करते हैं। देखिए माउंटेन ड्यू वाला ऐड है, ये तो देखा होगा ना, ऋतिक रोशन देते थे। कोई पुराना वाला आर्टिस्ट तो नहीं है, ऋतिक रोशन देते तो देखे होंगे ना। हाँ ये सर, शिवम सर, थैंक यू। ऋतिक का बहुत फैन है शायद। हाँ, ये आयुष सर भी देखा। हाँ आयुष कुमार है, तब सर ही है। हाँ यस, मेरी मैम ने भी देखा है, थैंक यू। क्या बोलते हैं कि डर के आगे, नीता थैंक यू मैम, फर्स्ट टाइम आई गेट योर रिस्पॉन्स। माउंटेन ड्यू, वो क्या बोलते हैं कि डर के आगे जीते है, क्या पता नहीं है, लेकिन वो आपके दिमाग को पेनिट्रेट कर चुका है, डर के आगे जीत है। एमसिल का वाला एक ऐड था, हाँ, डर के आगे जीत है, यस शिवम सर। तो एमसिल वाला एक ये था कि एक टपकती बूंद आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये ऐड तो मुझे बहुत बहुत भाता था
क्योंकि वो लास्ट टाइम में एक बुजुर्ग आदमी को डेथ के पहले उसने साइन कर दिया अपना विल में, और टपक से एक बूंद आता है, विवेक सर में भी देखा है, और वो मिट जाता है। तो ये एमफिल बोले के एक एमफिल रहता तो ये नहीं हो सकता था। कार्ड एक्सेल बोलता है दग अच्छा है। तो ये जो पेनिट्रेशन है, लैंग्वेज पेनिट्रेशन है, इमोशनली हम लोगों को बोलते हैं कि ये आपके लिए अच्छा है। तो इट इज कॉल्ड द टाइप ऑफ द बिजनेस कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ दैट, किसको कैसे आपको मूव करना है। पापा क्या है लॉजिक रीजन। हाँ, लॉजिक, कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता है कि हम लोग के लॉजिक के लिए कुछ प्रोडक्ट लेते हैं। हाँ, ये क्या बोलते हैं ना, एक ऑयल है सीता कुमारी बोलकर कुछ ऐसा ऐड में आता है कि बाल पड़ना कम कर देगा, बाल बाल काला बना देगा। तो वो आप नीड के लिए भी क्या खरीदते हैं और इमोशनल रीजन के लिए भी लेते हैं। ये सही है कि वो कैसे आपको पेनिट्रेट कर पा रहा है। अभी देखिए कस्टमर और कंज्यूमर, इसमें भी एक डिफरेंस रहता है। कैसे पकड़ कर चलते हैं, आप लोग शायद तो मैरिड नहीं है, लेकिन पकड़ कर चलते हैं कि आपके नजदीक वाला कोई मैरिड कपल रहता है, वो उसके बेबी के लिए बेबी फूड लेने गया है स्टोर में, वो बोलेगा एक नैनपो दीजिए और एक सेरेलैक दीजिए। तो उसका कंज्यूमर कौन है, कस्टमर कौन है, ये जरा सोचिए कि एक बेबी फूड खरीदने गया है पापा और ये मम्मी। बेबी क्या है विवेक सर, बेबी आप लिखे है, बेबी कस्टमर है या कंज्यूमर है? यहीं पे ये जगलिंग ऑफ द वर्ड, कंज्यूमर है। यस, बेबी कंज्यूमर है। हाँ, बेबी कंज्यूमर है मनीषा मैम, थैंक यू। अर्चना मैम, थैंक यू। बेबी कंज्यूमर है, लेकिन कस्टमर कौन है? कस्टमर तो पेरेंट्स ही है। पेरेंट्स को बेबी को जब देगा, बेबी करेगा, खा लेगा, तो ओ ये अच्छा है, बेबी ये खाता है तो यही लेकर आ जाइए, यही लेकर आते हैं दुकान से। लेकिन कंज्यूमर तो बेबी है, और पापा जो पेरेंट्स है वो लोग कस्टमर है। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है ये सही नहीं है, जो परचेस कर रहा है वही आपका कस्टमर हो। हम जब किसी के घर पे वो सिस्टम डाल रहे हैं, कस्टमर कौन है? जिसका बिल कम आ रहा है वो है। लेकिन बिल वो जो अंकल है वो देता है, या अंकल का जो लड़का या लड़की है घर पे वो देता है? तो हमको कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंशिएशन करना है। ये मेरा कंज्यूमर कौन है और मेरा कस्टमर कौन है, क्योंकि कंज्यूमर से ही कस्टमर हमको जनरेट करना है, जिसके नीचे वाला ही देखिए क्वेश्चन में एडवाइजर और रेफरर है। अगर हम आपसे पूछते हैं मैडम, जितने भी मैडम है यहाँ पे, सबसे पूछते हैं मैम कौन सा वाला लिपस्टिक आप यूज करने ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, कौन सा ब्रांड का? तो मैम लोग क्या बोलेगा, देखते हैं, हम लोग वेट करते हैं। मैम लोग कुछ ना कुछ आंसर दे देगा कंपनी का। नायका, मनीषा मैम नायका, ओके, हम नाम नहीं बताते हैं, ठीक है। लैक्मी, ओके। नंदिनी मैम लैक्मी, अच्छा बताते भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसका जो पसंद है। नायका, लैक्मी, कोई नहीं। अर्चना मैम थैंक यू, आप मेरे तरह है, कुछ नहीं लगाते, ठीक, छोड़ दीजिए। तो ठीक है, तो लैक्मी, एप्पल, ये भी है। ये क्या है शिवम, शायद एप्पल का कुछ कॉस्मेटिक्स है, हमको पता नहीं। मेरी मैम भी मेरे तरह है, कुछ नहीं यूज करते, थैंक यू मैम। नहीं नहीं, जो जो करता है ठीक है। और एप्पल क्या है, अब तो मोबाइल में चला गया, बैंड है। नहीं नहीं, हम बोल रहे थे कि लिपस्टिक का कोई बात कर रहे थे, तो एक बैंड हम लोगों के पास, नो एप्पल के लिपस्टिक लगाते हैं, ओके। तो मुझे पता नहीं था, थैंक यू जॉनसन, ओके। हाँ, आ रहे आ रहे शिवम सर, आपके लिए क्वेश्चन ला रहे, आपके लिए क्वेश्चन ला रहे, ये मैम लोगों के लिए था, आपके लिए है, आपके लिए है। कौन सा वाला ब्रांड का परफ्यूम आप यूज करते हैं? यस नंदिनी मैम, कौन सा वाला ब्रांड का परफ्यूम यूज करते हैं आप लोग? जल्दी जल्दी सर लोग, मैम लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर कर दिया। वाइल्ड स्टोन, ओके फाइन, एक्स होता है, फाइन। आई सर, आउट सर, या देन फूड क्या हुआ? वाइल्ड स्टोन, फॉग, फॉग, हाँ कुछ क्या चल रहा है, फॉग, फॉग, ओके ओके। तब देखिए एक चीज को कुछ ही सेकंड के अंदर ना, फॉग एंगेज, ओके, कुछ ही सेकंड के अंदर हमने बहुत सारे ब्रांड का प्रमोशन कर दिया है। राहुल बनवाल ने से कहा है बिंदा, ठीक है। तो हम कुछ ही सेकंड में देखिए हम कितने बंदे ओके नंदिनी मैम, कुछ ही सेकंड में हम लोग बहुत सारे ब्रांड का प्रमोशन कर दिया, फ्रॉस्ट के कर दिया, लैक्मी के कर दिया, नायका के कर दिया। वो लोग हम लोगों को कोई भी ब्रांड वैल्यू नहीं देते, हम लोगों को रखे भी नहीं है ब्रांड को प्रमोट करो। लेकिन हम लोग एडवाइजर है और रेफरर है। जब भी कोई बिजनेस ओपन करता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप चालू करता है,
उसको भी ढूंढना चाहिए हु इज माई एडवाइजर और माई रेफरर। वो कस्टमर और कंज्यूमर के तरह कोई एक बंदे को आप आपका दम पे कुछ अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, एफजी प्रोडक्ट और सर्विस देते हैं, तो वो बंदा अगले बंदे को बताएगा कि उससे ले लीजिए, नया है लेकिन वो दमदार चीज है, आई विल यूज दैट एंड इट इज आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। ये जगह तक इस एडवाइजर और रेफरर तक एंटरप्रेन्योर को जाना है कि हमको कैसे आगे जाना है, हम कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। तो ये एडवाइजर और रेफरर, नायका फॉक कोई नहीं बोला है हमको कि मेरे लिए थोड़ा ऐड बना दीजिए, हमका हमारे थोड़ा प्रमोशन कर दीजिए, बोलता है नहीं, बोलता है, कुछ देता भी नहीं। एक फॉक का भी तो नायका भी देता है शायद कुछ गिफ्ट वगैरह शायद। मेरा दोस्त लोग है उसमें, वो लोगों ने माईग्लाम बोलकर एक ऐप था, उसका मोबाइल फुल हो गया, क्या जितना मांग ले सकता था ले लिया, मुझे बोला कि आपका मोबाइल दे दीजिए, आपको तो ऐसा कुछ लगता नहीं, हम आपके 2 मोबाइल है, 2 मोबाइल से दोनों ये करेंगे तो हम लोगों को गिफ्ट आ जाएगा। तो हम बोले ले लीजिए, लेकिन क्यों दिए, हम उसको बोले दूसरे दिन ही जाकर भैया ये हटा दीजिए आप लोगों ने, क्योंकि इतना मैसेज सारा दिन भर तो कौन देता है, एक प्रोडक्ट तो आप ले लिए, इतना मैसेज आता है क्या। तो हम बोले कि माइग्राम हटा दीजिए मेरे से। तो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट को लेकर आपको आगे जाना है, एडवाइजर और रेफरर क्रिएट करना है। इफ यू क्रिएट द एडवाइजर और रेफरर इज इजीली if your product have the same quality or quantity. If you mark that, yes, someone raise hand. Moni Kumari. Yes, ma'am. Are you raise your hand? Unmute yourself. Ma'am, if you have any question, please unmute yourself. Okay, I will carry on. If you have any question, you can give the chat box or you can on your audio also. No problem, ma'am. Okay. Then it is the advisor or referrer part. तो क्रिएट करना है, एडवाइजर और रेफरर को क्रिएट करना है जो आपके सर्विस को आगे तक ले जाएगा। अनुप सर, हम पहले बता रहे थे ना एंटरप्रेन्योरशिप का जरूरी क्यों है। जॉब में तो सिक्योरिटी है, जॉब में कोई रिस्क नहीं है, लेकिन है सर, just for that pandemic, it is a report from that pandemic time, unemployment growth is so high that time. Now so many people get the 50% in salary. So employment है, मेरे पास job है, I am secure from that. It is not right that moment. After corona effect, it is not right from that. So if you take an opportunity for business or any entrepreneurship, it is the time. It is after 5 years is also the time. When you think you take any decision for your entrepreneurship, this is the right time. If you complete your learning and if you have the strength of that, I can do. देखिए अगर हम कर सकते हैं तो आप कोई भी कर सकते हैं। ये मेरा क्या बोले, ये मेरा थिंकिंग है। If I do, anybody can do. So unemployment job is not secure nowadays. जॉब है तो कर सकते हैं, लेकिन जॉब है तो उसके साथ भी कुछ करना चाहिए, कर सकते हैं। तो आफ्टर दैट टाइम व्हेन यू settle your business and you take that, leave the job and take that opportunity, it's also be okay for all. अभी हम जो काम करते हैं सोलर वाला, आपको देखा करा रहे थे, ये सोलर के काम करते हैं हम लोग। तो इन दैट केस व्हाई चूज सोलर, इट इज अ सेकंड पार्ट। अगर कोई एक हाउस होल्ड अपने बाड़ी के लिए जो घर के लिए जो लाइट पंखा चलाता है 90 यूनिट यूज कर सकता है। तो 90 यूनिट का जो इलेक्ट्रिसिटी दे कैन यूज, द पावर प्लांट व्हेन द मेक दैट इलेक्ट्रिसिटी, पावर प्लांट ब्रांड 40 kg coal. Power plant burns 40 kg coal, and that 40 kg coal gives 98 kg of CO2. If any one household use a solar system, they can prevent 90 kg of CO2. If one household save the 90 kg of CO2 from the environment, so it is a great opportunity. If 5, 10, 11, or 1,000 households use the solar appliances or solar power plants for the home, so it is our motto to promote to everyone why you use the solar power plant. Nowadays, it is a higher electricity bill is come. The electricity rate now it changes from January. Last January तक ये 8 रुपीज था, 8 रुपीज CST में, और ACDCL में थोड़ा हटके था। वो एक और भी बड़ा चैप्टर है।
तो हम नहीं जाते हैं, 8 रुपीज पकड़ कर चलते हैं, तो वो भी जनवरी से बढ़ चुका है। इफ यू सी योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, यू सी द बैक पेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल and you see the November back page and you see February back page. You remember that, you accept that the what is the reality. बिल का जो रेट है वो बढ़ चुका है। हम लोग सामने वाला पेज देख के कितना है ऑनलाइन में भर देते हैं, तो पीछे वाला पेज एक बार देख लीजिए, लास्ट नवंबर या दिसंबर का एक पेज ले लीजिए और इस फरवरी का ले लीजिए, वहां पे लिखा रहेगा 25 यूनिट के लिए इतना पैसा आपको देना था, and nowadays for which they are written, are you see it is a huge hiking. So day by day you lost your money with the electricity bill. as just ऐसा होता है ना, आप रेंट के घर पे रह रहे हैं, रेंट दे रहे हैं महीने में 6,000 8,000, और एक साथ एक बार इनिशियली इन्वेस्ट कर एक घर खड़ा कर लिए। इनिशियली वो घर है, इन्वेस्ट ज्यादा है, लेकिन उस 12 महीने में जो पैसा आपको देना था, 5 साल में जो पैसा देना था, उसको देखिए एक साथ जोड़ लीजिए, वो घर बन गया आपका। ऐसा ही है सोलर वाला भी फंडा। एक बार आप एक प्लान बैठाते हैं तो 25 ईयर्स तक का उसका वारंटी रहता है। तो ये जो प्रमोशन, ये जो है बेनिफिशियरी पॉइंट ऑफ द कस्टमर, इसको लेकर हम लोग प्रमोट करते हैं, इसको कस्टमर को समझाते हैं कि व्हाई यू टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ सोलर ऑन ऑफ। ये पिक्चर था, हमने नहीं ड्रॉ किए हैं, ये कोई भी टेम्परिंग पिक्चर नहीं है, गूगल से लिया हुआ पिक्चर है। इन द टाइम ऑफ कोरोना टाइम, when the government will realize that and posted that picture after corona affection, and जब सब कुछ बंद था, लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, how clear weather is come। तब तो सिलीगुड़ी से भी कंचनजंगा दिखाई दिया था, लेकिन अब दिखाई नहीं देगा। लास्ट few days 5 or 10 days back I will go to Darjeeling, I see our Kanchenjunga, it's my luck, but so many people don't see that. So it is the changes of the weather of corona when the lockdown changes come. So if you get that type of fresh air, you can use the solar system. अभी रैपिडली एक जल्दी से हम एक रैपिड ले लेंगे कि अगर कोई सोलर में आ सकता है, आना चाहता है आफ्टर द लर्निंग ऑफ द सोलर सिस्टम, वो कैसे सोलर में काम कर सकता है। ये छोटा सा एक है जो हम बोलते हैं सबको, वही एक छोटा सा रिकैप ले लेंगे कि अगर पकड़ कर चलते हैं आपने सोलर में लर्निंग किए हैं और आपको सोलर में काम करना है, बिजनेस कैसे आप कर सकते हैं। 5 ऑप्शन है, हम आपको थोड़ा जल्दी से ये दिखा देंगे। फर्स्ट है, आप हो सकते हैं तो इंस्टॉलर बन सकते हैं, मतलब किसी को चाहिए एक प्लान, आप इंस्टॉलेशन पैनल वगैरह कितना है जानकारी ले लीजिए, उसका कम मैथ कैलकुलेशन रहता है कि उसको कितना प्लान देना है, वो पावर प्लान लेकर जाइए, उसके घर पर बैठा दीजिए, उसके बाद उसको भी फायदा क्योंकि उसका भी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा, और आप काम किए हैं तो आपका भी फायदा क्योंकि आपका प्रॉफिट आएगा। तो ये एक है, आप इंस्टॉलर के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास रहेगा, वो है आप मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं। कैसे, ये किसी के पास है, अब बहुत सारे जगह पे जाएंगे तो देख सकेंगे कि प्लान था पहले लेकिन अभी चल नहीं रहा है, तो आप सोचेंगे, बहुत सारे बंदे ऐसे बोलते भी हम लोग, ओ सोलर काम नहीं करता है। नहीं, काम करता है लेकिन वो मेंटेनेंस में नहीं थे। तो अगर हो सके कि आप इंस्टॉलेशन के फंडे में भी नहीं पड़े, पर्चे में भी नहीं पड़े, अब मेंटेनेंस के काम भी ले सकते हैं। आप एक मेंटेनेंस यूनिट भी खोल सकते हैं कि जहाँ पे भी मेंटेनेंस हो आप अप्रोच कर सकते हैं और वो काम आप भी खुद ले सकते हैं। अब हो सके तो कंपोनेंट का सेलर भी बन सकते हैं। आपके पास रूम है, शॉप है, आप एक नहीं तो एक शॉप रेंट पे ले सकते हैं, वहाँ पे आप पैनल, बैटरी, इन्वर्टर जो भी है वो चीज पढ़ने के टाइम आपको या आ जाता है कि कौन सा चीज लगता है प्लान में, वो आप एक साथ इकट्ठा कर रख सकते हैं और एज ए सेलर आप उसको सेल कर सकते हैं, उससे भी आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं। ये थर्ड ऑप्शन है, पढ़ाई का कैलकुलेशन का झमेला नहीं है, खुद का आकर रखिए, कोई आकर मांगता है तो 330 वाला पैनल 5 दे दीजिए, आप दे दीजिए, पैसा ले लीजिए, वो भी एक बिजनेस हो सकता है। फोर्थ में क्या है, अब कंपोनेंट इतना बड़ा है, आपको शॉप खोलना है तो नहीं खोलना है, आप घर पे बैठ के अप्लायंस जो होता है हम लोगों का, बहुत सारा अप्लायंस है, मेरा गहरा है, आप मार्केट में ढूंढेंगे तो बहुत सारे और भी अप्लायंस मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी कुछ अप्लायंस को लेकर घर पे भी आप बिजनेस का स्टार्ट कर सकते हैं। या किसी को बंदे को चाहिए आप उसको दे सकते हैं, उसके साथ पैसा ले सकते हैं, 5 रुपया में खरीदा हुआ जिनिस को आप आपके हिसाब से दे सकते हैं, तो एक बिजनेस आप कर सकते हैं इस फील्ड में भी। और लास्ट जो है, आप इस कोई भी आपको आने का जरूरत नहीं है, आप इंस्टॉलेशन नहीं किए, मेंटेनेंस नहीं किए, शॉप भी ओपन नहीं किए, घर पे भी कुछ काम नहीं किए, कंसल्टेंट बन सकते हैं।
किसी बंदे को चाहिए और कौन सा बंदा है जिसको ऑपरेट करता है। अगर का चलते एक बंदा बोला कि मुझे एक ऐसा सोलर वाला यूनिट चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं है कौन इंस्टॉल करता है। आप जो इंस्टॉल करते हैं 2-3 बंदे के चैनल आप ले लीजिए, सर ये है मैम ये है, आप ये कर सकते हैं, तो एक कोटेशन भेज दीजिए। तो ये भी एक ब्रिजिंग होता है, ये ब्रिजिंग आप जोड़ सकते हैं। एज ए कंसल्टेंट भी आप सोलर में काम कर सकते हैं, इसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी है। तो ये था, तो रैपिडली हम लोग जो ओवरकम किए कि सोलर में कैसे कोई भी बंदा आकर काम कर सकता है। और ये है हमारा कंपनी का लास्ट स्लाइड। ये है क्या है, ये यहाँ पे देखिए 2-3 लोगो दिख रहे हैं आपको। जो ऊपर वाला लोगो है उसमें लिखा हुआ है ग्लोबल लिंक। हाँ, हम ग्लोबल लिंक के मेंबर है, जैसे शांतनु सर ने भी बताया था पहले स्टार्ट होने के टाइम में। शांतनु सर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल लिंक। ग्लोबल लिंक इज अ यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट है, यूएस एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर लोगों को लेकर काम होता है। आपके जैसा कोई भी बंदा, जैसे एमबीए स्टूडेंट है या ऐसा कोई स्टूडेंट है, वो लोग आता है, आकर हम लोगों को वे ऑफ द वे दिखाता है। आप लोगों को भी क्लास करते हैं, हम लोग भी क्लास करते हैं, वहाँ पे क्लास भी कराया जाता है to build our own experience or build our own business. How can we better our life? तो ग्लिव ये काम करता है हम लोग एंटरप्रेन्योर लोगों के लिए। this year is a fourth year I am associated with the ग्लिव। तो ग्लिव का जो लास्ट ईयर का प्रोग्राम था इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम था, तो उसमें आई गेट अ इम्पैक्ट इन्वेस्टर एलसी सर। देखिए दाएं तरफ एलसी सर का लोगो है, बाएं तरफ हमारा लोगो है, और हम लोग दोनों कोलैबोरेशन में जुड़ रहे हैं। तो इसी हिसाब से हमारा नया वाला कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड वाला कंपनी है वो इस साल ओपन होने वाला है with Assessor Impact Investor and Sunny Solution make a new version of the company which is private limited company. It is gained by my 3 years work and with Glyph support. Glyph give the क्या ना ग्लिफ इंट्रोड्यूस किया है एलसी से मेरा, तो ग्लिफ गिव द हाई बेंच मार्क फॉर मी। तो ये नया वाला जो है ये काम चालू हो चुका है। 1-2 महीने में वो कंपनी का नाम भी हम लोग ले आएंगे। कंपनी का नाम गवर्नमेंट से मिल चुका है, हम लोगों को पेपर वर्क चल रहा है। तो नया वाला प्राइवेट लिमिटेड वाला कंपनी भी हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है। तो ये था एक एंटरप्रेन्योर का जर्नी जो हमने अभी तक ओवरकम किए हैं, और एक एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए, जो मेरा भाषण था। तो अभी तक के लिए थैंक यू, और आपके लिए ओपन है। कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए तो मेरे लिए आप बोल सकते हैं। जितना मेरा तजुर्बा है और मेरा जानकारी है हम शेयर करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं? थैंक यू। थैंक यू अर्चना मैम। और एक बात बता देते हैं, देखिए आप लोग एमबीए वाला स्टूडेंट है और बीबीए जो भी आप लोग कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से सही आपके कोर्स है। अगर इसमें भी कोई बंदे को ऐसा लगता है कि आई एम ए गुड कंटेंट राइटर और आई एम ए गुड एड मेकर, लेकिन आप लोगों को सब्जेक्ट चाहिए होता है, मतलब पकड़ कर चलते कि हम एक कंटेंट लिखेंगे, किसके ऊपर लिखेंगे। अगर वो कंटेंट लिखते भी है तो वो मार्केट में कैसे रिएक्ट करता है, आपको बाद में आपको शायद एक कंटेंट राइटिंग के लिए भी कुछ एंटरप्रेन्योरशिप आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे टॉक लाइव है, ऐसे है, तो आप वैसा भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको कंटेंट चाहिए, मतलब एक सब्जेक्ट चाहिए। तो अगर ऐसा भी कोई बंदा यहाँ पे है जो यहाँ पे कनेक्ट होकर है अभी तक यहाँ पे जो है, आप लोग किसी को ऐसा लगता है कि मुझे कंटेंट राइटिंग आता है, मुझे एड मेकिंग आता है, लेकिन कंटेंट मिलेगा तो मुझे और भी सही रहेगा कि मैं कैसे इसको आगे ले जा सकता हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो बाद में भी हमसे और शांतनु सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी है यहाँ पे, आप बोल भी सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग करना है हमको ये बनाना है, तो सब्जेक्ट हम दे देंगे। अगर आपका कंटेंट और ये अगर आपको ये कंटेंट राइटिंग, आपका कंटेंट राइटिंग अप टू द मार्क ऑफ आवर कंपनी होता है तो हमारे वेबसाइट में भी आएगा। आपका एड भी ऐसा ही ठीक रहता है तो हमारा पेज में भी वो शो होगा। तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस पहले से मिल जाएगा पढ़ते पढ़ते के आई गेट दैट द कॉन्फिडेंस है, मुझे ये बनाना आता है, मुझे ये लाइन रहेगा, क्योंकि आपको तो भी किसी एंटरप्रेन्योर को आगे ले जाना है।
तो ये आप लर्निंग एंटरप्रेन्योर होता है। इंडस्ट्री में 4 एंटरप्रेन्योर के अंदर में आप लोग लर्निंग एंटरप्रेन्योर में आ सकते हैं। तो कैटलिस्ट के तरह कोई भी एक बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए कुछ भी इनपुट दे सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ आपके दिमाग में है, करना है, सब्जेक्ट चाहिए, तो आप हमको शेयर कर सकते हैं। अभी तक के लिए थैंक यू सर। कोई भी क्वेश्चन है तो हम है यहाँ पे शांतनु। Yes, thank you ma'am for such a wonderful session and आपने जैसे I use in हिंदी that आपने जैसे बहुत ही एकदम आसान भाषा में एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कौन से जगह पे, एकदम बेसिक से लेके आप एकदम पूरा इतने अच्छे बढ़िया से आपने किए। तो इससे तो आई थिंक बच्चे लोगों को बहुत सारा मिला है नॉलेज और उन लोगों को प्रोत्साहन भी मिला है, क्योंकि दैट्स अ थिंग कि और लोग बहुत लोग सोचते हैं लेकिन उतना उसको आगे नहीं ले जा पाते, जो आपने बोला अभी। तो इसीलिए सभी को बोला जाता है कि मैम का मेरे पास मैम का नंबर सब कुछ है। तो अगर आप लोगों को कोई भी सहायता चाहिए तो वी कैन कम्युनिकेट टू मैम एंड मैम भी आप लोगों को नंबर मेल आईडी तो अभी था स्क्रीन पे, तो आप लोग चाहे तो देख लीजिए। और उसके साथ साथ अगर और भी कोई है तो हम तो है ही, तो कांटेक्ट करके आगे आप जो भी आइडिया हो, जो भी आप करना चाहते हैं उसको हम अगर फिजिबल हो ऑब्वियसली तो हम इसको आगे ले जा सकते हैं। और अगर कोई आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन रैप अप। ओके, सो आई थैंक यू थिंक विवेक सर। बट Yes, ये I नाइस think टू मीट और थैंक यू तब तक ठीक है जब तक, थैंक्स मैम, आज तक क्लास ओके, थैंक यू आयुष सर। yes, लेकिन ये इंटरेस्टिंग और ये तब तक रहेगा मेरे लिए जब तक आप कोई वहां से भी 4-5 बंदे उभर कर आए, सर को बोलिए हम लोगों को भी एंटरप्रेन्योरशिप करना है और एंटरप्रेन्योर को टीच करना है, तब रहेगा ना कि ये सेशन सही था आपके लिए। सही आप बात सर है, को सही बोलिए कि एंटरप्रेन्योर को ट्रेंड करना है, कैसे वो लोग काम करते हैं ना, उसको उसका जो चेंज है उसको देखना है ना। ओके, थैंक यू अर्चना मैम। तो ये आप करते जाइए, सर को बताइए। नाइस टू मीट तो ठीक है सर, शिवम सर देखेंगे, आप आगे आइए, सर को बताइए कि हमको भी आगे जाना है और दूसरे कोई भी एंटरप्रेन्योर को सही बात, 25 में लाना है। एग्जैक्टली। और हम लोग का कोशिश यही है कि जैसे हम पहले ही बता दिए कि मैम एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक संस्था से जुड़े हुए हैं, तो उनमें और भी बहुत ही रिनाउंड प्रोफेसर्स और बाहर के भी कुछ लोग हैं, इंटरनेशनल जैसे कि यूएस से भी है। तो हम लोग का ये कोशिश है कि अगर आप सभी को, अगर पूरा टीम को अगर कॉलेज में लाया जाए तो फिजिकली हम लोग आमने सामने बात हो सकता है, तो वो और भी इंटरैक्टिव सेशन होगा। तो वहाँ पे आके, तो वहाँ पे वी कैन अरेंज फॉर नॉट ओनली फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट, वी कैन अरेंज फॉर द all background student, so that can be another good initiative. So I think students, I may have no question, so thank you ma'am so much. So we hope we again meet after brainstorming कुछ भी क्वेश्चन निकल आता है तो शांतनु सर को बता दीजिए। obviously after session। और ये तो रिकॉर्डिंग हो चुका है, तो रिकॉर्ड भी हम मैम के साथ शेयर कर देंगे और बच्चे लोगों को भी मिल जाएगा। तो अगर तुम लोगों को मन में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो वी कैन कम्युनिकेट विद मैम। सो थैंक यू मैम, thank you so much for coming here, and we hope we again meet in future endeavor also. So thank you ma'am, thank you, nice to meet you, thank you. Okay. So participants, we end here. So we again meet tomorrow in the computer lab with GST class. Okay, thank you. Thank you sir.